जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में बहुत सारी ऐसी वाटर बॉडीज़ हैं जिन्हें रिजुविनेट और कंजर्वेट करने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स जो है वो चलाए जा रहे हैं। ऐसा ही एक प्रोग्राम उद्योग भवन में आज होने वाला है। मैं हूं नीतू सिंह, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू। आपको दिखाते हैं कि वाटर बॉडीज़ को कंजर्व और रिजुविनेट करने के लिए क्या कुछ यहाँ पर खास जो है तैयारियाँ की गई हैं। I request Adil Kotwal ji and Kuldeep Ahi ji kindly sir join us. The light of the lamp brightens the path. It removes the darkness of the world. भर दे हमें आंधी हो तूफान हो ये रोशनी चलती रहे। माननीय श्री मनु भटनागर जी को भेंट करते हुए गराना वेटलैंड माइग्रेटरी बर्ड्स को दर्शाता, कहते हैं बैठे बैठे हमारे हाथ भी सुस्ताने लगते हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा सा हाथों की एक्सरसाइज कर ली तो अच्छा लगता है। जोरदार तालियां आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Ladies and gentlemen, it gives me immense pleasure to welcome distinguished dignitaries, eminent experts and enthusiastic participants to this important and insightful session on conservation and rejuvenation of water bodies as part of Amrut 2.0 orientation program in close collaboration with INTEC New Delhi. We are honored to have your presence with us today. I would like to extend a special warm welcome to Commissioner Secretary to Government Housing and Urban Development Department, Shrimati Mandeep Kaur ma'am, for gracing this occasion with her invaluable presence through online mode. It's all because of her relentless motivation with strong leadership skills that always push us to look for out-of-box solutions that has made us to organize this orientation program in collaboration with INTEC. This is all the more needed seeing the relevance of conserving and preserving our natural resources, especially water resources. This country has a national wetlands atlas, and this atlas has been prepared by ISRO, Space Research Organization, by the Space Research Center, which is the most important organization, all the organizations which are looked after by Government of India in terms of documentation. This has been done on GIS, and this is a published document. So we have enough of documentation and listing or identification of the wetlands of the whole country, which also includes documentation of the wetlands and water bodies of our state. What had happened in Khiram Sirama is a village, in fact a group of 3-4 villages who had sufficient water with them. There were 3 springs in Khiram Sirama which were feeding the whole population. 15 years back, they had a very competent and a very vocal MLA representing them, and these people persuaded the MLA to give us a water supply scheme, so that we have a water supply scheme and everybody, it's a pleasure to have water outside your bedroom. And a water supply scheme was set up there. पहले स्टार्ट हुआ 1.0 जो 2015 में स्टार्ट हुआ। जैसे गवर्नमेंट आई उसने इसको रियलाइज़ किया कि इस चैलेंज को कि वाटर मिशन जो है हमने नेशनल लेवल पे स्टार्ट करना है। 2015 को आया, फिर 5 साल के लिए, फिर नेक्स्ट आया जल जीवन मिशन जिसने रूरल इंडिया को देखा, वो 2019 में। अब नेक्स्ट जो है ये 2021-22 में स्टार्ट हुआ अमृत 2.0। इसमें 3 कंपोनेंट थे। एक तो वाटर सप्लाई था, ऑगमेंटेशन उसकी करनी, दूसरा था सीवरेज जो सेप्टेज की कनेक्शन करनी है, जो 500 जो हमारी अमृत सिटीज़ थी उनको सैचुरेट करना, तीसरा था वाटर बॉडीज़ जो हैं उनको कंजर्व और रीजुविनेट करना। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है, क्योंकि जब तक हम अपने वाटर को जो एक्वीफर्स हैं उनको रिचार्ज नहीं करेंगे तब तक हमें अवेलेबिलिटी नहीं होगी वाटर की, क्योंकि ट्यूबवेल या हैंड पंप जहाँ से भी वाटर आ रहा है एक्वीफर से आ रहा है, जब तक उनको रिचार्ज नहीं करेंगे और उनसे हम विड्रा करते रहेंगे तो हमें 2050 में जो गवर्नमेंट ने असेसमेंट की है कि हमारे पास अवेलेबिलिटी कम होगी बट यूटिलाइजेशन ज़्यादा होगी। तो इसी चीज़ों को देख के चैलेंजेस को, तो यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंस जो अवेयरनेस कोलैबोरेशन हम कर रहे हैं कि एक टेक्निकल एक नेचर बेस्ड सोल्यूशन आए, जिससे क्या है कि हमारे जो एक्वीफर हैं ये रिचार्ज हो। देखो ये एज ओल्ड ट्रेडिशंस थे हमारे कि नेचर बेस्ड सोल्यूशन, जो पॉन्ड्स होती थी, लेक्स होती थी, उनको कितना पवित्र माना जाता था।
नदी हैं, नाले हैं, जो नदी हैं जो मेन हमारी हैं, इनकी पूजा की जाती थी। इसीलिए है कि वाटर एक एलिक्सर ऑफ लाइफ है, क्योंकि ये हमारी ना कि ये हमारे सर्वाइवल के लिए इम्पॉर्टेंट है, बट हमारी इकोलॉजिकल, इकोनॉमिकल जो है वेल बीइंग है सिटीज़ की, वो सारी इसी के ऊपर डिपेंडेंट करती है। तो आपने देखा इस कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर की जितनी भी वाटर बॉडीज़ हैं जिन पर महत्वपूर्ण ध्यान देने की इस समय ज़रूरत है, उन्हें किसी तरह से कंजर्वेट किया जाए और किस तरह से रिजुविनेट किया जाए, उसको लेकर आज यहाँ पर उद्योग भवन में विभिन्न अधिकारियों के साथ बातचीत हुई और आपने सुना भी कि किस तरह से वो आगे प्लानिंग कर रहे हैं। आपकी इस पर क्या कुछ राय है? कितनी ज़रूरत है हमें इन वाटर बॉडीज़ को रिवाइव करने की? उस पर अपनी कमेंट सेक्शन में राय ज़रूर रखिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरामैन अजय जाड़ू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।